Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Am I audible? मेरी आवाज जा रही है? Yes. Yes. Sir, आ रही है सर. Okay. Okay, so today we are going to proceed the super heterodyne receiver, the receiver part, which we are going through. Just wait for a minute. My system will start hanging. So can anyone recall me what are the blocks which were present in super heterodyne receiver? Can anyone recall that? What are the blocks which are present in super heterodyne receiver? Yes, anyone? What are the blocks which are present in super heterodyne receiver? Ankit. Ankit Kumar. Ankit. So am I audible now? Yes, sir. Yes. So please recall what are the blocks which were present in super heterodyne receiver? So the first one is RF amplifier. After that, mixer. Yes. After that, RF amplifier. And with mixer, local oscillator is also connected. After that, demodulator. And last one is audio amplifier or power amplifier. After that, speaker is connected. okay. So this is about the the receiver. This is a simple radio receiver. Okay. So what is the limitation of this super heterodyne receiver? Or what is the demerit of this super heterodyne receiver? So very basic or the very popular demerit of this receiver is the image, production of image. Okay, so image rejection should be there, proper image rejection should be there, so that we can amplify or we can get the required signal. Okay, so इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो इमेज है दैट शुड बी eliminated before reaching the IF amplifier. जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें IF एम्पलीफायर के पास आने के पहले ही क्या करना होगा, हटाना होगा, सो दैट जो भी अनवांटेड सिग्नल है उन्हें हटाना होगा, सो दैट जो इमेज सिग्नल है वो IF एम्पलीफायर तक ना पहुंचे. अगर IF एम्पलीफायर तक पहुंच गया देन देयर विल बी
spurious signals, or there will be more than one signal at the output. Okay, so the proper image rejection should be there. Okay, so I am going to share the whiteboard now. The one of the important point which we have to study in this receiver is double spotting. Okay, so let me share the whiteboard. Okay, so are you able to see the whiteboard? Are you able to see the whiteboard? No, sir. No, sir. Yes, sir. Above. Okay, so yes, we have to study today is double spotting. So जैसा कि नाम से पता चल रहा है, double spotting. Double spotting means there are 2 points where the signal will be incident on the receiver, and 2 signals instead of 1 signal will be obtained at the output. So double spotting actually है क्या? तो ये डबल स्पॉटिंग कब आता है? व्हेन जब रिसीवर एक से ज्यादा सिग्नल्स को पिक करता है, और वो एक से ज्यादा सिग्नल्स कौन से होंगे? मे बी एक जो सिग्नल होगा, वन ऑफ द सिग्नल्स विल बी ऑफ हायर वैल्यू एंड अनदर विल बी ऑफ लोअर वैल्यू. जो भी स्टेशन रिसेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है जिस भी सिग्नल को, स्टेशन कहने का मतलब है, मतलब जो भी रिसीवर है, क्योंकि ये नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं एनवायरनमेंट में, सो जो भी रिसीवर हैं विच आर ट्यून टू सम पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, they will get 2 frequencies at the input, and based on that we will have multiple signals. Okay, so we can say that when a receiver picks up the same short wave station at 2 nearby points. कहाँ पर? On the receiver. On the receiver dial, then this phenomenon occurs. क्या कहने का मतलब है कि जब रिसीवर क्या करे, 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को पिक करे.
जो कि शॉर्टवेव के ही सिग्नल हो, ओके, शॉर्टवेव स्टेशन के ही सिग्नल हो, रिसीवर के 2 पॉइंट्स पर रिसीव हो, तब डबल स्पॉटिंग जो फेनोमेना है वो अकर होता है। ओके, अब ये डबल स्पॉटिंग जो होता है वो किसके कारण होता है? डबल स्पॉटिंग जो भी आ रहा है, या जो भी दो सिग्नल्स रिसीवर पर रिसीव हो रहे हैं ऑफ द सेम रेंज, शॉर्टवेव के ही सिग्नल रेंज में आ रहे हैं, तो इन दैट केस डबल स्पॉटिंग होता है। तो इसके पीछे जो कारण है, वो सबसे बेसिक कारण है, वो क्या है? selectivity. So what is the reason for this double spotting? First, you can say poor front end selectivity. Poor front end selectivity कहने का क्या मतलब है? फ्रंट एंड कहने का क्या मतलब है? फ्रंट एंड कहने का मतलब है कि जहां पर सिग्नल फर्स्ट टाइम रिसीव हो रहा है एट द रिसीवर, ओके, am I audible? आवाज जा? Yes, sir. ओके, सो डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम अगेन शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो पुअर फ्रंट एंड सेलेक्टिविटी, डबल स्पॉटिंग का जो मेन कारण है वो पुअर फ्रंट एंड सेलेक्टिविटी है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इम्प्रॉपर और इनअप्रोप्रिएट इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। ओके, inappropriate image frequency। सर व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं है सर। तो व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं है? ओके, लेट मी सी। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। Yes, sir. तो जो पहला रीजन क्या था डबल स्पॉटिंग का? डबल स्पॉटिंग का पहला रीजन है फ्रंट एंड सेलेक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं हो रिसीवर की, और दूसरी इनअप्रोप्रिएट इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। ओके, सो वॉट एवर इमेज इज कमिंग टू द receiver, it should be rejected, but due to inappropriate image frequency rejection there will be double spotting phenomenon is occurring। ओके, अब ये जो डबल स्पॉटिंग हो रहा है इसके कारण होगा क्या? ओके, सो व्हाट विल द इफेक्ट? ओके, जो भी डबल स्पॉटिंग आ रहा है, सो ड्यू टू डबल स्पॉटिंग व्हाट विल अकर, या क्या इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम पर? तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी वीक स्टेशन है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी मास्क्ड। मतलब जो भी वीक स्टेशन है, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम है, दैट विल बी मास्क्ड बाय हायर फ्रीक्वेंसी station or the strong station। Okay, so what you can say that the effect is the weak station, okay, the weak station may be masked by the reception of a nearby station, या फिर कह ले नियर बाय स्ट्रॉन्ग स्टेशन। ओके, at
the spurious point on the dial. So आप लोग देखे होंगे जैसे कि सभी लोग रेडियो देखे होंगे. ओके, सो सॉरी, सभी लोग रेडियो देखे होंगे और रेडियो में देखे होंगे कि डिफरेंट वैल्यूज दिया होता है. ओके, डिफरेंट वैल्यूज मतलब फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दिया हुआ होता है एंड बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, या फिर अभी मोबाइल में ही देखते होगे अगर रेडियो चलाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस हैं. ठीक है, तो जो पहले वाला रेडियो होता था उसमें देखे होगे यहाँ पर एक अच्छा, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, रेड कलर से. एक नॉब घुमाते हैं तो नॉब घुमाते हैं तो एक डायल होता है जो कि मूव करता है लेफ्ट और राइट. ओके, इसी डायल को मूव करके हम ट्यून करते थे. आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा रेडियो को. तो रेडियो में एक डायल होता है, एक स्विच होता है. उस स्विच को जब हम रोटेट करते हैं वेदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेस्ड ऑन दैट ये डायल मूव करता है और वो वहां पर हमें दिखाता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहा है. ओके, सो कभी कभी ये देखेंगे कि मान लें इधर हायर फ्रीक्वेंसीज है और इधर लोअर फ्रीक्वेंसीज है, तो कभी कभी हम देखेंगे कि मान लें कि अगर यहाँ पर ट्यून कर रहे हैं तो इस जगह पर भी एक वही स्टेशन पकड़ रहा है जो कि इस जगह पर पकड़ रहा है. ओके, सो व्हाट वी कैन सी दैट पोजीशन ए पर भी वही स्टेशन पकड़ रहा है, पोजीशन बी पर भी वही स्टेशन पकड़ रहा है. तो यहाँ पर रीजन क्या, कारण क्या है इसका? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट द डबल स्पॉटिंग. मतलब जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वहां पर भी हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो चैनल है या स्टेशन है वो पकड़ रहा है और अपने हायर पोजीशन पे तो वो पकड़ ही रहा है. ठीक है, तो this is the reason behind the phenomena is double spotting, that higher frequency or the higher station is masking the lower station, and both the points at both the points of A and B we can listen we can listen same station. Okay, so effect यही है कि weak station may be masked, weak station may be masked by the reception of nearby strong station at the spurious point on the dial. Okay, so ये रीजन है डबल स्पॉटिंग के कारण जो इफेक्ट होता है वो. ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. कोई भी एक वैल्यू ले लें, जैसे मान लें कि हमारे पास कोई एक सिग्नल है, लेट इट बी of frequency like मान लें एक ओके, तो एक सिग्नल है मान लें 700 किलो हर्ट्ज का. ठीक है, हमारे पास जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो मान लें कि हमारे पास एक सिग्नल है 700 किलो हर्ट्ज का. ठीक है, नाउ दिस सिग्नल इज कमिंग टू द एंटेना और द रिसीवर, एंड बेस्ड ऑन दिस इनकमिंग सिग्नल द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी विल ट्यून इटसेल्फ. क्योंकि जो भी सिग्नल आता है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी सिग्नल रिसीवर पर आता है, आरएफ एम्पलीफायर आरएफ स्टेज के पास जो भी सिग्नल आता है, बेस्ड ऑन दिस सिग्नल जैसे वी कैन सी दी ब्लॉक डायग्राम. सो यहाँ पर आरएफ स्टेज है और इस आरएफ स्टेज के पास के बाद हमारे पास क्या है, देयर इज अ मिक्सर और इस मिक्सर से कनेक्टेड है क्या, लोकल ऑसिलेटर. हाँ, अब इस मिक्सर से पास करने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ मिलता है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलता है जो कि 455 किलोहर्ट्ज जनरली होता है. ओके, सो दिस IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कैन वेरी नियर 455 किलोहर्ट्ज. यहाँ पर IF एम्पलीफायर है,
इसके बाद हमारे पास डिटेक्टर है, ओके, डीमॉड्यूलेटर है। ओके, सो यहाँ पर अभी जो भी सिग्नल यहाँ पर एफएस आ रहा है, सो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वी आर ट्रीटिंग एज एफएस द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आ रहा है और यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफआई है, ठीक है। तो what will be the frequency of the local oscillator? Can anybody tell me? If fs is coming as 700 kilohertz and the local, so what should be the value of local oscillator frequency? Because local oscillator frequency हम already जानते हैं कि ये उतने वैल्यू पर ट्यून होगा जो कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी से 455 किलोहर्ट्ज ज्यादा हो। तो हम यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इसे हम 455 नहीं लेकर सिंपलर वैल्यू लें, लेट इट बी 470 किलोहर्ट्ज। ओके, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 455 kilohertz, I am taking it as 470 kilohertz. Okay, so fs is 700 kilohertz. So what will be the local oscillator frequency? It should be the signal frequency plus the intermediate frequency. So it is 700 plus fi is 470, that is कितना हो गया, 7 और 4 11, 1170 किलोहर्ट्ज। तो ये जो सिग्नल आया, ये कौन सा सिग्नल आया? ये आया लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, ठीक है। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है 470 किलोहर्ट्ज, ठीक। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमारे पास आना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दिस ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलता है, दिस एफ आई इज ऑलवेज एफ एल माइनस ऑफ एफ एस, बट इंस्टेड ऑफ दिस there will be chances of getting FL plus of FS. Okay, so इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर हमने एक स्टेशन लिया है जो कि fs इज इक्वल टू 700 किलोहर्ट्ज है, तो लेट इट बी एज अ वीक स्टेशन। ओके, अभी हम एक स्टेशन ले रहे हैं जहाँ, ओके, इसे हम fs1 मान लेते हैं। एक सिग्नल स्टेशन ले रहे हैं जहां पर की फ्रीक्वेंसी है 1640 किलोहर्ट्ज का। ओके, सो हम एक स्टेशन ले रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टेशन, ठीक है। तो जब इस फ्रीक्वेंसी को हम ले रहे हैं, तब इस केस में जो सिग्नल होगा लोकल ऑसिलेटर का, वो क्या होगा? लोकल ऑसिलेटर the value of local oscillator frequency FL, what it should be? It should be 1640 plus of 470, तो ये कितना आ जाएगा? 0, 7 और 4 11, 4 6 10 और 1 11, 2, यानी कि in the case when the strong station is there, based on that the fs2 the signal frequency will be 1640 and the local oscillator frequency will be 2110। तो अभी जो हमें सिग्नल मिल रहा है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी वाला, वो कितना मिल रहा है? 2110 का। और जो हमारे पास सिग्नल पहले से है वो कौन सा सिग्नल है? वो हमारे पास सिग्नल है 1640 किलोहर्ट्ज का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सिग्नल पिक हो रहा है बेस्ड ऑन दिस सिग्नल एज fs2, दिस इज इक्वल टू 1640 किलोहर्ट्ज। अभी अगर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ये नहीं होकर, तो यहाँ पर हमारे मान लें ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी fl2 है, दिस इज fl1। सो ये 2110 नहीं होकर अगर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल आ जाए जो कि 1170 किलोहर्ट्ज के बराबर है,
तब इस केस में क्या होगा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दिस सिग्नल एट द इनपुट, दैट इज 1640 किलोहर्ट्ज सिग्नल एट द इनपुट, तब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1640 किलोहर्ट्ज, जो कि ये सिग्नल है हमारे पास FS2, और ये 1170 किलोहर्ट्ज अगर लोकल ऑसिलेटर पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है किलोहर्ट्ज का, तब इस केस में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब इस सिग्नल फ्रीक्वेंसी से लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा इस केस में, इट विल बी इक्वल टू 470 किलोहर्ट्ज। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस 1640 वाले फ्रीक्वेंसी के कारण, जो कि हमारा पहले लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना था 1170 था, और अभी जो सिग्नल आया वो है 1640 किलोहर्ट्ज। तो अगर बेस्ड ऑन दिस इनकमिंग सिग्नल लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ट्यून नहीं हुआ और लोकल ऑसिलेटर पर यही 1170 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रह गया, तब हमारे पास क्या मिल रहा है, अगेन वी विल हैव द सेम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मैंने यहाँ पर कहना क्या चाहा कि पहले हमारे पास ये सिग्नल 700 किलोहर्ट्ज का सिग्नल आ रहा था, बेस्ड ऑन दैट ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ट्यून हुआ 1170 किलोहर्ट्ज पर, ठीक है। अभी एक दूसरा सिग्नल आया जो कि 1640 किलोहर्ट्ज का है, तो जिसके लिए लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ये ट्यून होना चाहिए था, लेकिन अगर ये ट्यून नहीं होकर क्या हुआ, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 1170 किलोहर्ट्ज ही अगर रह गया, इन दैट केस जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो भी 470 किलोहर्ट्ज ही मिल रहा है, जो कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इस पहले वाले सिग्नल के लिए था। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीड ऑफ गेटिंग दिस सिग्नल which is 700 kilohertz, there will be a signal, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो 1640 के कारण मिल रहा है, सो this signal will get through the blocks and we will get this 1640 instead of 700। इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल के कारण, इस स्ट्रॉन्ग स्टेशन के कारण ये जो वीक स्टेशन वाला फ्रीक्वेंसी है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलकर ये स्ट्रॉन्ग स्टेशन वाला सिग्नल मिलेगा। तो क्या ये क्लियर हो पा रहा है? जो भी स्टेशन पिक हो रहा है डायल, वो पिक हो रहा है किसके कारण, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस लोकल ऑसिलेटर, ओके, मतलब डायलिंग ऑफ दिस लोकल ऑसिलेटर। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वीक सिग्नल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग सिग्नल एलिमिनेट कर दे रहा है, मतलब वीक सिग्नल के जगह पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, वीक स्टेशन के जगह पे हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेशन वाला सिग्नल मिल रहा है। ओके, सो दिस इज ड्यू टू नथिंग बट दी डबल स्पॉटिंग। इसे हम डबल स्पॉटिंग कह रहे हैं, जबकि एक वीक सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मास्क कर दे रहा है, ठीक है। ओके, so let us move further. Okay, so we are going to take a numerical. So question is that there is a super heterodyne receiver, but in this super heterodyne receiver there is no any RF amplifier, okay, there is no any RF amplifier, and the Q of the Q, that is quality factor of the antenna coupling circuit, is 90, okay, and the intermediate frequency is given as 455 kilohertz. Then what you have to find out? So the first part is
find out the image frequency. Find the image frequency and the image frequency rejection ratio at 950 kilohertz. Okay, this is the first part. And the second part is you have to find out the image frequency and the rejection ratio at 10 megahertz. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. पहला, वी आर यूजिंग द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वेयर देयर इज नो आरएफ एम्पलीफायर, मतलब आरएफ स्टेज नहीं है. सो द Q is the quality factor of the antenna coupling circuit is 90 and IF intermediate frequency is 455 kilohertz. So by these data we have to find out the image frequency and the image frequency rejection ratio at 950 kilohertz. तो यानी कि जो एंटीना पर जो सिग्नल आ रहा है दैट इज 950 किलोहर्ट्ज. सो मींस द सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है पहले वाले केस के लिए, फॉर द फर्स्ट केस सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 950 kilohertz and it is given that Q is 90 and IF is 455 kilohertz. So based on this data you can find out the image frequency. Okay, so these are the data we have. So what will be the image frequency? What will be the image frequency? Image frequency जो होता है that will be, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, fs plus twice of fi. इसे हम मान लें FSI, सिग्नल इमेज. ओके, FSI सिग्नल इमेजेस. So fs is what? 950 plus twice of 455 and this you will get as 1860 kilohertz. तो ये हमें क्या मिला है? ये हमें इमेज सिग्नल मिला है. अब बेस्ड ऑन दिस इमेज सिग्नल वी हैव टू फाइंड आउट द rejection ratio. So we already know the formula for rejection ratio as root under 1 plus Q square rho square, where what is the value of rho? The value of rho is, it is another ratio FSI by Fi minus of Fi by FSI. So we have already FSI we have calculated as 1860 and the value of intermediate frequency is 455. We have 455 by 1860. So when you go through this calculation, you will get it as, so this is not, this is FSI by, it is FS, sorry, FSI, FS by FSI. So the ratio what we will get is 1860 by the signal frequency. Signal frequency is nothing but 950 minus f of s. Okay, so this is the signal frequency. So 950 by this 1860. So you will get this value as approximately 1.45. So when we are putting the value of this rho and Q in this equation, so this is image frequency rejection ratio IF
IFRR, image frequency rejection ratio, is nothing but alpha is equal to 1 plus Q square. So we already have the value of Q as 90 square, okay, into the rho square, which is 1.45 square. So when you calculate it, it will be approximately equal to 130.5. Okay, so please rejoin again as the time is getting over now. So we have got the value of alpha, the image frequency rejection ratio for the first part. So for the first part, we have got the IFRR, image frequency rejection ratio, as this. Okay. Now for the second part, we have to find out that. So from the question, you can see that for the first case, the signal frequency is 950 kilohertz, and for the second case, signal frequency is 10 megahertz, where the value of Q and IF will remain the same. Okay,